بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سمینہ امانت ہے. میں کلینکل ہیماٹولوجسٹ ہوں اور آج کی اس نشست میں ہم ہیموفیلیا کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ سب کو معلوم ہے 17 اپریل کو ہیموفیلیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں ساری دنیا میں ہیموفیلیا کی آگاہی کے سلسلے میں مختلف سیمینارز اور ٹاکس منعقد ہوتی ہیں تاکہ عام عوام کو ہیموفیلیا کے بارے میں آگاہی دی جا سکے. تو آج کی اس نشست میں آپ کے جو عام سوالات ہیں ہیموفیلیا کے بارے میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گی. تو سب سے پہلے تو ہیموفیلیا کیا ہے؟ واٹ از ہیموفیلیا؟ ہیموفیلیا ایک موروثی بیماری ہے جو ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اور اس بیماری کی پریولنس جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک جیسی ہے، یعنی کہ تقریباً 5,000 اگر میل بچے پیدا ہوں گے ان میں ایک کو ہیموفیلیا ہوگا. ہیموفیلیا میں فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 کی کمی ہوتی ہے. اگر فیکٹر 8 کی کمی ہو تو ہم ہیموفیلیا اے کہتے ہیں اور اگر فیکٹر 9 کی کمی ہو تو ہیموفیلیا بی کہتے ہیں. اب یہ فیکٹرز کیا ہیں؟ یہ فیکٹرز جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا نظام ایسے بنایا ہے، جب بھی کوئی انجری یا ٹراما ہوتا ہے تو انسان کے جو خون کی نالی اگر پھٹ جاتی ہے تو خون بہنے لگتا ہے، تو قدرتی طور پر اسی وقت فوراً خون جمنے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کافی سارے اجزاء چاہیے ہوتے ہیں جن کو ہم فیکٹرز کہتے ہیں، جو کہ بیسیکلی پروٹینز ہوتی ہیں. تو اسی طرح فیکٹر 8 اور فیکٹر 9 بھی انہی پروٹینز میں سے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی پروٹین کی کمی ہو جائے تو یہ عمل صحیح طرح سے نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جن میں بھی یہ ان پروٹینز کی کمی ہوگی ان کے اندر خون بہنے کی ٹینڈنسی یا کہیں گے خون جمنے کی جو ہے ٹینڈنسی قدرت کم ہوگی اور یہ پیشنٹ جو ہیں وہ ایکسیسو بلیڈ کے ساتھ پریزنٹ کریں گے. اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ کیا ہمیں ہیموفیلیا ہو سکتا ہے؟ کس کو ہیموفیلیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہیموفیلیا کیونکہ ایک پیدائشی بیماری ہے اور یہ ماں باپ سے منتقل ہوتی ہے، تو آپ اگر ہیموفیلیا ہے تو آپ پیدائشی طور پہ آپ کے اندر ڈیفیکٹو جین ہوگی اور یہ ڈیفیکٹو جین جو ہے جو کہ نارملی اس کو فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 پروڈیوس کرنا ہے، ڈیفیکٹ کی وجہ سے وہ اس کی مقدار اتنی پروڈیوس نہیں کر سکے گی. تو اس بیماری کی شدت کی کمی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں میں اگر لیس دین 1% نارمل فیکٹر کا پروڈکشن ہو تو ان میں یہ بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی چوٹ لگے بغیر سپونٹینیس بلیڈنگ ان لوگوں میں ہوتی ہے. اور یہ بچے جو ہیں یہ جب یہ کرالنگ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے اندر یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جبکہ جن میں مائلڈ اور ماڈریٹ ڈیزیز ہوتی ہے اس کی علامات لیٹر ان لائف، یعنی کہ 20 25 30 سال یا کسی میں 40 سال کی عمر میں بھی اس کا ڈائگنوسس ہوگا. لیکن بیماری ان کے اندر پیدائشی طور پہ موجود ہوتی ہے اور ڈائگنوسس لیٹ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ سپونٹینیس سے خود بخود بلیڈ نہیں کرتے اور جب کبھی آپریشن یا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں. اب ہیموفیلیا، اگلا کوشچن ہے کہ ہیموفیلیا کے علامات کیا ہیں؟ ہیموفیلیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، اس میں خون زیادہ بہے گا، یعنی کہ مثال کے طور پر ان لوگوں میں اگر کوئی چھوٹا سا کٹ لگ جائے گا تو اس کا خون جو ہے عام لوگوں کی نسبت زیادہ دیر تک بہتا رہے گا. اور اسی طریقے سے کوئی چھوٹی چوٹ لگی ہے، کوئی ٹراما ہو گیا ہے تو اس میں خون جو ہے وہ زیادہ دیر تک بہتا رہے گا اور اس سے ان لوگوں میں خون کی کمی اور کئی دفعہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کی خاص جو بہت سے بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں جو ہم ہیموفیلیا کے گروپ کے اندر شامل کرتے ہیں، لیکن ہیموفیلیا اے اور بی میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو خون بہنے کا عمل ہے یہ جوڑوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں، مثال کے طور پہ گھٹنے ہو گئے، ٹخنے ہو گئے، ایلبو ہو گئی، شولڈر جوائنٹ ہو گیا. تو اس میں خون جب بہتا ہے تو وہ جوائنٹ سوج جاتا ہے اور اس کے اندر خون بھر جاتا ہے اور اس سے شدید تکلیف پیشنٹ کو محسوس ہوتی ہے اور بار بار اس عمل کے دہرانے سے یہ جوائنٹ جو ہوتے ہیں یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں اور معذوری کا سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بلیڈنگ ہے یہ پٹھوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہیڈ انجری ہو گئی ہے تو دماغ کے اندر بھی ہو سکتی ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی آپریشن یا ایکسیڈنٹ ان مریضوں کا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بلیڈ کرتے ہیں
और इनके लिए जान का खतरा होता है। अब अगला सवाल है कि ये जो हीमोफीलिया है कि इसका इलाज है कि नहीं, इसका परमानेंट क्योर है कि नहीं। देखें, हीमोफीलिया का इलाज तो मौजूद है, क्योंकि जो मिसिंग फैक्टर है उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये फैक्टर्स की हाफ लाइफ कम होती है, 12 घंटे। आप अगर किसी को शदीद ब्लीडिंग हो रही है तो सुबह शाम लगाने पड़ेंगे, और कई दफ़ा 10 15 दिन तक भी लगाने पड़ते हैं। जो परमानेंट क्योर है उसके ऊपर रिसर्च जारी है, साइंटिस्ट बहुत सालों से लगे हुए हैं इसका क्योर करने के लिए कि इस जीन का डिफेक्ट है उसको ठीक किया जाए। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगले चंद सालों में जीन थेरेपी के ज़रिए हम इसकी क्योर या इसका परमानेंट इलाज की हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये अगला जो क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है वो ये आता है कि कोई ख़ास एज ग्रुप इसको ये बीमारी होती है, या ये औरतों में ज़्यादा होती है या मर्दों में, कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं हीमोफीलिया के लिए। तो एज का तो मैं ये कहूँगी ये तो बीमारी पैदाइशी तौर पे होती है, सिर्फ एज डिफरेंस इसलिए आता है अगर ज़्यादा शदीद बीमारी है, सिवियर हीमोफीलिया है, तो ये इन्फेंसी यानी कि जब बच्चा क्रॉलिंग और चलने लगता है उस वक्त ही इसकी अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। उसके घुटने सूजने लग जाते हैं, उसके जो है हिप जॉइंट है वो सूजने लग जाता है, और उसको चलने में क्रॉल करने में दिक्कत आती है, बच्चा रोता है। और अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है तो बड़ी एज में भी ये अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे के रह गया कि लड़कियों में इसकी अलामत ज़्यादा हैं या लड़कों में, तो ये क्योंकि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इसकी जो जीन है जो प्रोड्यूस करती है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को, उसकी लोकेशन एक्स क्रोमोसोम है। और एक्स क्रोमोसोम जो है वो आपको मैं बताती चलूँ कि जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और लड़कियों में 2। अब अगर डिफेक्टिव क्रोमोसोम होगा और एक ही होगा तो लड़कों के अंदर इस बीमारी के अलामात ज़ाहिर होंगे, जबकि लड़कियों में चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और अगर एक डिफेक्टिव होगा तो दूसरा जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है वो इतना फैक्टर्स बना लेगी कि उनके अंदर अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी। लेकिन ये लड़कियां जो हैं ये आगे जनरेशन में हीमोफीलिया को मुंतकिल कर सकती हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया को कैन हीमोफीलिया बी प्रिवेंटेड। देखें, थैलेसीमिया में जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, उसके अंदर बहुत आसान टूल्स हैं कि हम 2 कैरियर्स की शादी को अगर अवॉइड कर लें तो थैलेसीमिया जो है मेजर नहीं होगा। लेकिन हीमोफीलिया में इस तरह नहीं है। हाँ, हीमोफीलिया में आप कैरियर डिटेक्शन भी मुश्किल टेस्ट होते हैं जो आम लेबॉर्ट्रियों में नहीं अवेलेबल होते। लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर एक कैरियर है और दूसरा नॉर्मल है तो बीमारी नहीं होगी। इसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर एक कैरियर है, फीमेल कैरियर है और जो हस्बैंड है वो नॉर्मल है, तो वो जो फीमेल में हर प्रेगनेंसी में 50% चांस होगा कि वो जो एबनॉर्मल जीन है वो ट्रांसमिट करेंगी बच्चों में। और अगर मेल में ट्रांसमिट होगी तो उसकी अलामात आएंगी, अगर फीमेल में वो ट्रांसमिट करेंगी तो उसमें वो कैरियर होंगी। और इसी तरह अगर मेल हीमोफिलिक है और उसकी शादी होती है, उसकी बीवी नॉर्मल है, लेकिन वो अपने बच्चों में, क्योंकि उसका एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अपनी तमाम बेटियों में वो एक्स क्रोमोसोम मुंतकिल करेगा। तो इसलिए मेल हीमोफिलिक के तमाम बेटियां ऑब्लिगेटरी कैरियर्स होंगी, यानी कि लाजमी तौर पर कैरियर्स होंगी। और जबकि उसके जो बेटे हैं, क्योंकि उनमें उसका एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, तो वो सब नॉर्मल होंगे। अब ये अगला सवाल है कि हीमोफीलिया ट्रीटमेंट को क्या हम घर में इसका इलाज कर सकते हैं? देखिए, हीमोफीलिया जो बीमारी है इसमें जब भी ब्लीडिंग होगी तो इसका इलाज जो है वो यही है कि आपको फैक्टर लगाना है, रिप्लेस करना है जो मिसिंग फैक्टर है, तभी वो ब्लीडिंग स्टॉप होगी। ठीक है, और जितनी जल्दी लगाएंगे उतने डैमेज कम होगा। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं, जब फैमिली में जब कोई पहला बच्चा होता है तो उन लोगों को उसके लिए तो फैक्टर लगाने के लिए जाना पड़ेगा
ہسپتال رجوع کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا فیملی کا کوئی ممبر انجیکشن لگانا سیکھ لیتا ہے اور ان کے پاس وہ فیکٹرز یا انجیکشنز اویلیبل ہوتے ہیں گھر میں, تو تب وہ گھر میں مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر فیکٹرز نہیں ہوتے گھر میں اویلیبل تو آپ کو ہاسپٹل لازمی اس کو لے کے جانا پڑے گا فیکٹر لگانے کے لیے, اور اگر فیکٹر نہیں ہے تو پلازما لگانے کے لیے. سو اس کو پوری ٹریٹمنٹ انلیس اینڈ یو ہیو فیکٹرز ایٹ ہوم تو اونلی یو کین مینیج ہیموفیلیا ایٹ ہوم, جیسے کہ یورپ میں, انگلینڈ میں ہوتا ہے. اب یہ اگلا سوال ہے کہ ہیموفیلیا کیا آپ کی قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. ہیموفیلیا ایک فیکٹر ڈیفیشنسی کی ڈیزیز ہے جس کے اندر فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 کی کمی ہوتی ہے. اس کا امیون سسٹم یا آپ کے قوت مدافعت یا ڈیفنس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان پیشنٹس میں سوائے فیکٹر ڈیفیشنسی کے ان کی امیون سسٹم, ان کا جو بیماریوں سے ٹیکل کرنے کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بالکل انٹیکٹ اور نارمل لوگوں کی طرح ہی ہوتا ہے, اس لیے وہ امیونو کمپرومائز نہیں ہوتے. اس کے بعد جو اگلا سوال لوگوں کے ذہن میں عام طور پہ آتا ہے کہ کیا ہیموفیلیا کا پیشنٹ ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ تو اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر تو مائلڈ ڈیزیز ہے تو نو ڈاؤٹ تقریباً وہ نارمل لائف ہی گزارتے ہیں, یا ماڈریٹ ڈیزیز ہے اس میں کبھی کبھار ان کو پرابلم ہوئے گی انلیس اینڈ اگر وہ اوائڈ کرتے ہیں, یا کبھی آپریشن ہونا ہو یا خدا نہ خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تب ان کو ٹریٹمنٹ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہ مریض جن کے اندر فیکٹر کی کمی لیس دین 1% ہے, جس کو ہم سیویئر ہیموفیلیا کہتے ہیں, ان لوگوں کے اندر بیماری کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بار بار بلیڈ کرتے ہیں, یعنی کہ بغیر چوٹ لگے بھی ان کے اندر خون کے بہنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے, ان کے جوڑ سوج جاتے ہیں. اور جب ایک دفعہ یہ جوڑ سوجتے ہیں اور ان کا علاج صحیح نہ کیا جائے, بار بار ایک ہی جوائنٹ میں بلیڈنگ ہوتی رہے, تو وہ جوائنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ایسا ناکارہ ہو جاتا ہے اور وہ بچہ معذوری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو سیویئر ہیموفیلکس ہیں ان کے لیے نارمل لائف گزارنا ممکن نہیں ہے. ہاں, ایک صورت میں جیسا کہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ اگر ان کو پروفائلیکٹیکلی فیکٹرز لگا دیے جائیں, یعنی کہ ان کو ہفتے میں 1-2 فیکٹرز اس مقدار میں لگائے جائیں کہ ان کا جو منیمم لیول ہے وہ 1-2% سے نیچے نہ گرے, تو وہ ان کی لائف جو ہے کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ جو مائلڈ اور ماڈریٹ یا سیویئر ہیموفیلکس بھی ہوں, ان کو فیکٹرز اتنی مقدار میں ان کے پاس موجود ہوں اور اتنے فریکوینٹلی ان کو لگائی جائے کہ ان کا لیول نارمل لوگوں کے لیول جتنا مینٹین کیا جائے, تو وہ لوگ فٹ بال بھی کھیل سکیں گے, ہر قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں گے اور بالکل نارمل لائف گزار سکیں گے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں یہ پاسبل نہیں ہے. اب اگلا کوشچن ہے کہ کیا ہیموفیلیا کا پیشنٹ اس کی شادی ہو سکتی ہے, کیا اس کے بچے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں, شادی ہونے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہیموفیلیا, لیکن کہنا کہ بچے, جی ہاں, اس کے اندر ایک چیز کا خیال کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہیموفیلیا کی ایک موروثی بیماری ہے, یہ پیرنٹ سے ہی بچوں میں منتقل ہوتی ہے. تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری جو جینیٹک کاؤنسلنگ ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں آگاہی ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر میل اور فیمیل دونوں ہیموفیلک ہیں تو ظاہر ہے اس میں تو پھر لڑکیوں کا بھی ہیموفیلیا مینیفیسٹ کرنے والا ہیموفیلیا ہو سکتا ہے اور لڑکوں کو بھی ہو سکتا ہے. اور اگر صرف میل ہیموفیلک ہے اور خاتون نارمل ہے تو صرف لڑکیوں کو وہ کیریئر ہوں گی, علامات نہیں ہوں گی, اور لڑکے بالکل نارمل ہوں گے. اسی طریقے سے اگر فیمیل کیریئر ہے اور میل نارمل ہے تو اس میں اس کے بچوں میں اگر یہ بیماری جائے گی تو اس میں علامات ہوں گی. اب اس کو اگر مائلڈ اور ماڈریٹ ڈیزیز کیونکہ کمپیٹیبل ہے ود لائف تو اس میں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کی فیملی میں سیویئر ہیموفیلیا ہے تو اس میں بھی تھیلیسیمیا کی طرح ارلی 11-12 ویکس آف پریگننسی میں آپ کوریونک ویلر سیمپلنگ کے ذریعے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ بچے کو ہیموفیلیا سیویئر ہے کہ نہیں, اور آفر فار ٹرمینیشن کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری آپشن یہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ فیملی میں سیویئر ہیموفیلیا کے بچے اڈاپٹ بھی کیے جا سکتے ہیں.
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आम तौर पे लोगों के दिल में आता है, वो होता है कि हीमोफीलिया की मैनेजमेंट में क्या की जा सकती है, यानी कि फैमिली का रोल। देखिए, फैमिली का रोल जो भी बीमारियां जो कि लाइफ टाइम लॉन्ग होती हैं, उनके अंदर फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट में। हीमोफीलिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर आपने चोट लगने से, फिजिकल ट्रॉमा से बच्चे को बचाना है, तो अगर आपके बच्चे को हीमोफीलिया है, तो उसमें जो ध्यान करने वाली बात ये है कि जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसकी कहते हैं ना, जो सर्कमसिजन है या खतने कराने में आपको फैक्टर रिप्लेसमेंट के साथ कराने पड़ेंगे। नंबर 2 ये कि अगर आपने किन बातों का ध्यान करना है कि बच्चों को ऐसी जगह नहीं बैठाना जहाँ गिरने का खतरा हो, उसको ऐसे टॉयज नहीं देने, ऐसे खिलौने नहीं देने जो कि शार्प हों और वो उसको मुंह के अंदर या कहीं पर भी उसकी इंजरी कर सकें। तीसरी बात ये कि जब ये बच्चे स्कूल जाने की उम्र के होते हैं, तो फैमिली पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ होता है कि स्कूल वालों को इसकी फिज़िकल कंडीशन का, इस बीमारी हीमोफीलिया के बारे में बताना चाहिए, और ताकि वो जो टीचर्स हैं, जो स्कूल वाले, वो फिज़िकल गेम्स में उसको इन्वॉल्व ना करें, आउटडोर गेम्स में। हाँ, अलबत्ता जो इंडोर गेम्स में, उसमें वो ज़रूर बच्चों के साथ शरीक हो। इसी तरीके से जो और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब एक, यानी कि ये तो एक एहतियाती तदाबीर होगी कि अवॉइड किया जाए फिजिकल ट्रॉमा। दूसरी तरफ अगर बगैर, क्योंकि जो सीवियर टाइप होती है उसमें बगैर किसी चोट के भी खून बहना शुरू हो जाता है और जॉइंट सूजने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फैमिली की जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि खून मिनिमम से मिनिमम बहे, यानी कि उसको रोका जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा जोड़ के अंदर खून जमा होगा उतना ज़्यादा डैमेज, नुकसान जॉइंट को होता है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जैसे ही पता चले कि जॉइंट में सूजन और दर्द शुरू होती है और जॉइंट में सूजन शुरू हो रही है, तो उसमें कोल्ड फॉर्मेंटेशन का मतलब होता है कि आप ठंडा के ज़रिए, उसमें घर में अगर आप एक तौलिया लेके और उसके अंदर बर्फ़ डाल के उसका टिकोर गाय-बगाए करें, पहले 24 घंटे में अगर ये टिकोर ज़्यादा करते रहेंगे, उसमें शरेयानें श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा खून का ज़ाया नहीं होता, ज़्यादा नहीं बहता, जोड़ के अंदर कम से कम खून बहता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ऐसे मरीज़ों को जल्द अज जल्द जो है फैक्टर रिप्लेसमेंट की जाए। अगर तो फैक्टर घर में मौजूद है तो उसको लगाया जाए, वरना अगर फैक्टर नहीं है और प्लाज़्मा लगाना है तो उसको नज़दीकी अस्पताल ले जाके, या जो सेंटर जहाँ आप रजिस्टर्ड हैं, उसको जाके वो लगवाया जाए। तो ये जो एहतियाती और ये जो काम है, ये फैमिली जितनी जल्दी लेके जाएगी उतना कम जॉइंट डैमेज होगा और उतनी ही आसानी होगी जो है पेशेंट के लिए कि उसका जॉइंट नकारा होने से बच जाएगा। क्योंकि अगर एक जोड़ के अंदर बार-बार खून बहने का अमल जारी रहे, तो ये एक टारगेट जॉइंट बन जाता है, और टारगेट जॉइंट का मतलब ये होता है कि ये जॉइंट, जो उसका कार्टिलेज, वो डैमेज, उसके टिश्यू नकारा हो रहे हैं, और वो जो है फिर इरिवर्सिबली, यानी कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए टारगेट जॉइंट, अगर कोई ऐसा जॉइंट है जिसमें बार-बार ब्लीड हो रही है, तो आप डॉक्टर को बताएँ ताकि उसका लंबा मुकम्मल इलाज करें और जॉइंट को, टारगेट जॉइंट को फर्दर ब्लीड होने से बचाएँ ताकि वो डैमेज ना हो। अच्छा, अगला सवाल जो लोगों के ज़हन में आता है कि कॉस्ट ऑफ हीमोफीलिया, और उसकी मतलब क्या उसको कम किया जा सकता है? देखें, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर आम बीमारियाँ, इन्फेक्शंस, और उस पे ही कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है। हीमोफीलिया जो एक रेयर डिज़ीज़ है और जिसमें जो इसकी ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली है। इन द सेंस, क्यों कॉस्टली है कि इसके अंदर जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं वो एक तो यहाँ पर महँगे बहुत हैं जो अवेलेबल हैं, और बाकी तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं होते। सवाल ये कि जो डोनेशंस हमें सोसाइटीज़ को मिलती हैं, हीमोफीलिया सोसाइटीज़ को बाहर से आती हैं, तो वो फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। और प्लस एक ऑप्शन, जो ज़्यादा ऑप्शन हमारे मरीज़ों के लिए रहती है, वो होती है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा की। अब प्लाज़्मा के साथ प्रॉब्लम ये है कि उससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, या एचआईवी हो गया, उसके ट्रांसमिट होने का खदशा होता है। तो जिसकी वजह से हमारे जो हीमोफीलिया सोसाइटी के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 30% जो बच्चे हैं उनके पास, जो उनके पेशेंट्स हैं, वो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं। तो
इस चीज़ को अब बाहर मुल्कों में तो इन्होंने इस चीज़ को इस तरह कर्टेल किया कि वो वायरली ट्रीटेड प्लाज्मा लगाते थे, उसके बाद अब उन्होंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मा बनाना फैक्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट जो फैक्टर्स होते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं और इसके अंदर ह्यूमन और एनिमल कंपोनेंट मिनिमम से मिनिमम, और जो थर्ड जनरेशन उनमें होता ही नहीं है। मगर ये फैक्टर्स बहुत महंगे होते हैं और हमारे मरीजों की लिए पॉसिबल नहीं है उनको अफोर्ड कर सकें। हमारे पेशेंट्स के लिए इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि आबादी माशाल्लाह हमारी बहुत है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बहुत है। अगर अपने मरीजों के लिए हम इसको फ्रीज ड्राई करके और वायरली इनएक्टिव करके इनके फैक्टर्स बना लें तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और हमारे मरीज जो हैं उन माजूरी से बच सकते हैं। अगला सवाल अब ये कि अगर साइकोसोशल इफेक्ट्स ऑफ द हेमोफिलिक क्या होते हैं। देखें, जो भी डिजीज लाइफ लॉन्ग होती है उसके साइकोसोशल एस्पेक्ट उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितनी उस डिजीज की एज सच तकलीफ जो है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स एक इफेक्ट्स बच्चे जो होते हैं, जो जिनको या जो मरीज है उसको ये बीमारी होती है, एक तो ये कि उसका ये एहसास कि वो लाइफ टाइम के लिए उसको एक बीमारी है और वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता जो कि दूसरे लोग उसकी उम्र के कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। नंबर 2, उसको जब भी ब्लीड होता है तो नहायत तकलीफ के साथ गुजरते हैं, बहुत शदीद पेन होती है और वो ट्रॉमा से गुजरना, फिर फैक्टर की अवेलेबिलिटी या प्लाज्मा की अवेलेबिलिटी, 70% हमारी आबादी आपको पता है पेरीफ्रीज में रहती है। उनके लिए हेल्थ जो एक्सेस है टू द हेल्थ यूनिट के अस्पताल या तिब्बी इलाज की जो सहूलत को हासिल करने के लिए बहुत लंबे सफ़र करने पड़ते हैं, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं एक स्ट्रेस कॉज करते हैं, ना सिर्फ मरीज के लिए बल्कि फैमिली के लिए भी। हमने ये अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में नोटिस किया है कि जिस फैमिली में माँ बाप जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं या वो हर वक्त परेशानी की बातें रिगार्डिंग द डिजीज करते रहते हैं और उस घर में माहौल में बहुत नेगेटिविटी होती है, तो वो जो बच्चे होते हैं उनको साइको सोशल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों में साइको सोशल इफेक्ट्स होते हैं या स्ट्रेस होता है, उनकी ब्लीडिंग एपिसोड्स भी उन बच्चों के मुकाबले में जिसमें घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होता है और जो उनके पेरेंट्स हैं वो एक बस मस्बत रवैया अख्तियार करते हैं, तो उन बच्चों के मुकाबले में ये लोग ज़्यादा ब्लीड करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ के बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली की काउंसलिंग गाए बगाए होती रहे और तब ये बीमारी को फेस करने के लायक होंगे। क्योंकि देखें, हेमोफिलिक जो बच्चे होते हैं इनका फ्यूचर क्या है, हम इनको यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ना कि बर्डन ऑन द सोसाइटी। और उसका एक ही तरीका है कि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे तो उनको ऐसी जॉब्स, ऐसे कैरियर्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें डेस्क वर्क होगा, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, अपनी फैमिली का भी ख्याल कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं। और अगर वो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और तालीम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी सवाए फिजिकल लेबरर इस किस्म के कामों की रह जाएगी जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माशरे में सबका रोल है कि ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर इन लोगों बच्चों को तालीम की तरफ रुझान इनका कराए। अगला जो कॉमन सवाल पूछा जाता है कि कौन काउंसलिंग करे इन लोगों की। तो देखें, इसके अंदर ठीक है, डॉक्टर का रोल तो सरे फहरिस्त हुआ, जो हेमोफिलिया नर्सेज होती हैं या मेडिकल अटेंडेंट्स होते हैं, इन लोगों का रोल तो सरे फहरिस्त है। लेकिन पेशेंट ज़्यादातर जिन लोगों में रहते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है जो पेरेंट्स हैं, उनके फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, सारे जो माशरे के मेंबर्स हैं, माशरे के जो सारे फैक्टर्स हैं, जो सारे इदारे हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि जब भी वो ऐसे मरीज़ों से उनका मिलना जुलना हो या वाकफियत हो तो उनके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट करने की कोशिश करें और उनको मस्बत तरीके से ज़िंदगी को
टैकल करने का तरीका बताने की कोशिश करें, ताकि वो एक कामयाब इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकें। तो ये सब जो काउंसलिंग का फ़र्ज़ है, नंबर 1 पे ज़ाहिर है मेडिकल टीम का, लेकिन नंबर 2 पे फैमिली और फ्रेंड्स का आता है। अब इसके बाद मैं जो हीमोफीलिया के बारे में जो जनरल सी आगाही मैंने आप लोगों को दी, अब मैं चाहूँगी कि अगर आप, अच्छा, ये किसी ने हमसे पूछा है कि जो इदारा है SALMC, वो हीमोफिलिक पेशेंट्स के लिए जिस इदारे में मैं सर्व करती हूँ, देखिए SALMC जो है वो बेसिकली उसमें एक हेमेटोलॉजी सेंटर है, जिसमें तमाम हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मैनेज किया जाता है, और ख़ास तौर पे वो डिसऑर्डर्स, डिजीज़ जो कि लाइफ लॉन्ग होती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और भी तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसके साथ और भी बहुत से, यानी कि ज़ाहिर है जितने भी अज़्ज़ा जो खून जमने में मदद देते हैं, उनमें से कोई भी जो फैक्टर कम होगा, फैक्टर 7 भी हो सकता है, फैक्टर 11 भी हो सकता है, फैक्टर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसके अलावा वॉन विलिब्रेंट भी हो सकता है। देयर आर मैनी डिजीजेस जो कि इस अम्ब्रेला के अंडर आती हैं। तो हमारा जो सेंटर है उसकी खास, हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दीज पेशेंट्स है जिनको लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफीलिया के, हीमेटोलॉजी के। तो हम इनके लिए फ्री काउंसलिंग सेशंस करते हैं, और जो पेशेंट भी अफोर्डेबिलिटी जो है वो इशू नहीं है, हम कभी भी फी वेवर्स हो या टेस्टिंग के लिए भी उनको बहुत स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, और कंसल्टेशन मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री कंसल्टेशन दी जाती है। इवन ये कि जो भी मरीज़ टेलीफोन के ज़रिए काउंसलिंग लेना चाहे या मशवरा लेना चाहे, उसको भी हम मशवरा देते हैं। मेरा नंबर जो होता है वो मेरे प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखा होता है, मोबाइल नंबर, और वो जब भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे मरीज़ मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, और अगर वहाँ पर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए ब्लीडिंग की, तो उनको मैं ख़ास हिदायत ये करती हूँ कि आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ डॉक्टर से मेरी बात कराएँ, ताकि मैं उसको गाइड करूँ कि इसकी बीमारी क्या है और इसको किस तरह ट्रीट किया जाए। अब मैं तमाम जो सुनने वाले हैं उनसे गुज़ारिश करूँगी कि अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है इस हवाले से, तो काइंडली वो आप पूछें, तो मैं उसका जवाब देती हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन किया है तंजीला बाबा ने, कहती हैं कि हाउ कैन अ गर्ल हु इज़ अ कैरियर एवर गेट मैरिड एंड गेट रिड ऑफ द सोशल स्टिग्मा? वेल, देखिए, अगर किसी लड़की को, पहली बात ये कि कैरियर डिटेक्शन उस फैमिली में की जाती है जिसमें हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं। उसमें कैरियर डिटेक्शन से आपको पता चल जाता है कि इस बच्ची के अंदर ये शी इज़ अ कैरियर, और जब उसकी शादी करने लगे, एक तो डेफिनेटली ऐसे इंसान से, बंदे से की जाए जिसको हीमोफीलिया ना हो। नंबर 2, कि जब उसकी शादी हो, प्रेगनेंसी हो, तो ये ख़्याल किया जाए, अगर तो माइल्ड और मॉडरेट हीमोफीलिया है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मैनेज करना, दे लीव फेयरली नॉर्मल लाइफ। लेकिन अगर सीवियर हीमोफीलिया है, तो उसमें ये होता है कि पहले 10 से 12 हफ्ते में हमल के दौरान हम कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग करके बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है इसको सीवियर हीमोफीलिया है, तो उसमें टर्मिनेशन की ऑप्शन होती है। या दूसरी ऑप्शन में, क्योंकि इन पेशेंट्स को अगर फैक्टर मिलता रहे तो ये बीमारी इज़ कंपैटिबल विद लाइफ, तो उस सिलसिले में हम कैरियर डिटेक्शन की इम्पोर्टेंस ये आती है कि जब इस ऐसी मदर जो कैरियर हो और जिसके प्रेगनेंसी हो, तो जब मेल चाइल्ड होगा अगर, और उसकी डिलीवरी होनी होगी, तो स्पेशल केयर करनी पड़ती है कि हम कोई औजार यूज़ ना करें, फॉरसेप्स यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें हेड में ब्लीडिंग का चांस होता है और वो परमानेंट ब्रेन डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि कैरियर डिटेक्शन की। ये दूसरा सवाल हमें मारिया साहिर ने किया है कि शुड कैरियर टेस्टिंग बी मेड कंपल्सरी? तमाम कपल्स के लिए इसको कंपल्सरी किया जाए, जैसे कि थैलेसीमिया के बारे में कहा जाता है, और ताकि पोटेंशियल स्पाउस की कैरियर डिटेक्ट किया जाए। तो मेरा इसका जवाब ये है कि नो, कि एक तो ये कि हीमोफीलिया इतना कॉमन नहीं है जितना थैलेसीमिया है, और दूसरी ये कि थैलेसीमिया देखें 5 to 7% हमारी पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, जबकि हीमोफीलिया इज़ अ रेयर डिसऑर्डर, और
इसके अंदर अगर आप सारे कपल्स की कैरियर स्क्रीनिंग करने लगे, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट और हर लेबोरेटरी में अवेलेबल भी नहीं है और इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन लोग इससे इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, जिस फैमिली में हीमोफीलिया की बीमारी है उसके अंदर ज़रूर आप इसकी कैरियर स्क्रीनिंग कर लें, ताकि आगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रेगनेंसी में और जो डिलीवरी का मोड है उसको कि किस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर हेमेटोलॉजिस्ट हो और वो बेहतर केयर कर सकें आने वाले बच्चे की। अब ये अगला सवाल है कि इन्होंने पूछा है कि मेरे एक फैमिली में कोई अपने बेटे की शादी कर रही हैं और उसको माइल्ड हीमोफीलिया है, तो क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन लड़की वालों को बताना चाहिए कि नहीं? तो देखें, पर्सनली तो मैं ये समझती हूँ, शादी लाइफ टाइम का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डेफिनेटली जब आप इस किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से करने जा रहे हैं उसमें सारी हकीकत बयान कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगी कि अगर किसी को माइल्ड हीमोफीलिया है तो जो लड़की वाले हैं उनको भी इस बिना पर शादी से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइल्ड हीमोफीलिया फिलिक जो होते हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। जाहिर है जिस लड़के से आप ये शादी इसकी होने जा रही है, ये एक लड़का कमाता भी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, तो इससे साफ जाहिर है कि अगर खुदा ना खास्ता फैमिली में ये हीमोफिलिक की बीमारी आएगी भी तो वो माइल्ड होगी, विच इज़ फेयरली कंपैटिबल विद लाइफ, और उसमें इतने इश्यूज नहीं हैं। लेकिन बताना एथिकली, आई थिंक इट्स गुड टू आप शेयर कर लो ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये हमें कैल्टन हाई ने पूछा है, हाउ ऑफन डज अ हेमोफिलिक पेशेंट नीड टू विजिट द डॉक्टर? वेल, हेमोफिलिक पेशेंट्स जो हैं इनको डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, अगर माइल्ड मॉडरेट तो खैर बहुत रेयरली आते हैं, व्हेन एवर दे नीड एनी सर्जरी या कोई कोई खुदा ना खासा कोई ऐसा प्रोसीजर उन्होंने करवाना हो तो दे नीड कि उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी कवरेज के लिए दे नीड हेमाटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, राइट? But the patients with severe disease, what they frequently visit the clinics. Why? Because they frequently get this bleeding in their joints, in their muscles, without any provocation. कोई इंजरी भी नहीं होती है और spontaneous bleed करते हैं. So these patients, they need treatment. But if they are grown-ups or if their parents or attendants, they have the factors and they are well versed about aware about the disease management, so they have factors in their home, so they can always treat and manage a patient at home, और frequently आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जब भी पेशेंट ब्लीड करता है उसको फैक्टर जरूर या प्लाज्मा जरूर लगना चाहिए, उसके लिए चाहे वो घर में कर ले चाहे वो हॉस्पिटल में। हाँ, विजिट इन अ ईयर और 6 मंथली हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है इन द स्पेशलिस्ट हीमोफीलिया सेंटर्स, कि अगर कोई नई ट्रीटमेंट आ गई है, कोई नई स्ट्रेटजीज है, नई गाइडलाइंस हैं, तो वो वहाँ से लर्न कर सकें। एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है कि are you offering any counseling and fee waivers to hemophilia patients? Yes, definitely. I've already told you all कि जो hemophilia patients हैं या hematological patients जिनको lifelong disease है, they are special guest in our center, और हम उनके लिए कोई फीस, कोई कंपल्शन नहीं होती है फीस देने की, और जो भी पेशेंट काउंसलिंग लेना चाहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में कोई मशवरा, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी गाइडलाइंस के बारे में फ़ोन पे लेना चाहे या क्लिनिक पे आके लेना चाहे, तो हम उसको फ्री काउंसलिंग भी देते हैं, और हम फी वेवर्स कभी किसी ऐसे पेशेंट से जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वी नेवर चार्ज फीस, और मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स इन आवर क्लिनिक दे आर ऑलवेज get their counseling and consultation free of charge. Or any more questions? So if there are no more questions, तो मेरे ख्याल में हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है जाने से पहले बस मैं एक आपको मैसेज देना चाहूँगी कि आपके इर्द गिर्द जो भी मरीज़ किसी भी ब्लीडिंग
डिसऑर्डर में मुब्तला हों, जिनको खून अच्छा जी, एक आ गया क्वेश्चन कि कैन अ हीमोफिलिक पेशेंट पार्टेक इन फिजिकल एक्सरसाइज। वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हीमोफिलिक पेशेंट सिवियर डिजीज वाला, नो। हाँ, अगर वो पेशेंट जिसको आपने दूसरी एक्सट्रीम पे वो हैं कि आप उसको फैक्टर इतने फ्रीक्वेंटली लगाते हैं कि उनका लेवल नॉर्मल लेवल के जितना है, तो ऑफ कोर्स दे कैन डू एनीथिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो हमारे सेटअप में अगर हम बात करें तो देयर आर वेरी फ्यू पेशेंट्स जिसको हम कहेंगे कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे, बिकॉज प्रोफाइलैक्सिस भी जिनको हम देते हैं हफ्ते में 1-2 इंजेक्शन भी, वो भी लेवल इतना मेंटेन करते हैं कि स्पॉन्टेनियस ब्लीड ना हो और चोट लगने पे या तभी ब्लीड हो। तो इसलिए ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड यही कहता है कि हीमोफिलिक पेशेंट्स शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन फिजिकल गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज। फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो एक अलग चीज़ है और जो स्पोर्ट्स है वो अलग चीज़ है। एक्सरसाइजेस, यस, फिजियोथेरेपी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हीमोफिलिया मैनेजमेंट, क्योंकि जॉइंट में ब्लीड होता है, जॉइंट वीक होते हैं, तो वी नीड स्ट्रॉन्गर मसल्स टू सपोर्ट उस जॉइंट को बचाने के लिए। तो इनमें हम जो एक्सरसाइजेस वो वाली कराते हैं जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं होता है, यानी कि वो एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि जो मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करती हैं लेकिन जॉइंट के ऊपर बर्डन नहीं डालती। तो जब भी ये पेशेंट्स ब्लीड करने के बाद जब रिकवरी में होते हैं तो हम उनको कहते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करते करते और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाके फुल ट्रेनिंग लें, और वो कांस्टेंट ट्रेनिंग के पार्ट ऑफ हीमोफिलिया मैनेजमेंट इज फिजियोथेरेपी। तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी के जरिए वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन समवन विद हीमोफिलिया कीप देमसेल्फ हैप्पी। तो मेरे हेल्दी, मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं कि जो हीमोफिलिया के पेशेंट्स हैं, अगर समराइज करें तो अगर तो उसको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है देन दैट पेशेंट इज़ वेरी लकी, और उसमें बस उसको ये ख्याल करना है कि कोई कोई सर्जरी करानी हो या खुदा ना खासा वो अपने पास एक कार्ड में ये लिख के रखे कि ये माइल्ड हीमोफिलिक या मॉडरेट हीमोफिलिक, तो ताकि जब भी कोई ऐसे एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके अंदर उसको फैक्टर कवरेज ज़रूर दिया जाए ताकि ब्लीडिंग से बच सके। और जहाँ तक ताल्लुक है सिवियर हीमोफिलिक्स का, तो आइडियली अगर उनको प्रोफाइलैक्सिस लग जाए, कि जो कि बाकी दुनिया में तो लगता है डेवलप कंट्रीज़ में, और हमारी भी कोशिश है कि ये फैक्टर सस्ते हों और अवेलेबल हों तो हम अपने मरीज़ों को लगा दें ताकि वो कम से कम एक डे टू डे लाइफ में उनको ब्लीडिंग होने का खदशा ना, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग से बच जाएँ। तो बाकी अगर वो एहतियाती तदाबीर करें और ऐसी एक्टिविटीज़ से बचें जिसमें चोट लगने का ख़तरा हो, तो वो एक हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन बच्चों को अगर इनका हीमोग्लोबिन, उनकी जनरल हेल्थ बेहतर होगी, मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, तो इनकी लाइफ इज़ दे विल लीड अ हेल्थी लाइफ एज़ कंपेयर टू कि जिनकी हीमोग्लोबिन कम होगी और वो डिप्रेशन या स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहते होंगे। तो हीमोफिलिया के साथ-साथ इस एस्पेक्ट को भी ज़रूर देखना चाहिए फॉर बेटर लाइफ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट थैलेसीमिया ट्रेट ऑफ हस्बैंड एंड थैलेसीमिया नॉर्मल ऑफ वाइफ। फिर कोई मसला तो नहीं होगा। कहते हैं अगर थैलेसीमी ट्रेट ट्रेट है हस्बैंड का और वाइफ नॉर्मल है, ये किसी ने बीच में क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ। अगर हस्बैंड एक पार्टनर को, स्पाउस में से थैलेसीमिया कैरियर है और एक नॉर्मल है, पर उसमें शर्त ये है कि जो नॉर्मल है उसको आप मॉलिक्यूलर लेवल पे कंफर्म करें। वाई? क्योंकि जो हमारे रूटीन के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो जो माइल्ड म्यूटेशंस हैं उनको पिक नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मियाँ बीवी में से किसी एक को थैलेसीमिया कैरियर है तो दूसरे का मॉलिक्यूलर टेस्ट करके कंफर्म किया जाए कि उसको कोई म्यूटेशन नहीं है, तो फिर उनको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। उनके बच्चों में कोई भी इंशाल्लाह थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया माइनर होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लोग समझे जाते हैं। अच्छा, ये है कि दिस वाज़ अ वेरी तारीफ़ के थैंक यू, और थैंक यू तंजीला बाबर। इन्होंने भी
अलमास ऐसी थैंक यू अलमास, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने सबने ये सेशन सुना और उम्मीद है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में और जो भी गौर करेंगे कि इनमें ये बीमारी है तो उनको ज़रूर गाइड करें। और ये एक डेंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत बिल्कुल सवाल बहुत इम्पोर्टेंट किया है कि एज अ डेंटिस्ट हम हीमोफीलिया के पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि देखें जो हीमोफीलिया मैनेजमेंट है वो टीम वर्क है, उसमें एक डॉक्टर का रोल नहीं। हीमेटोलॉजिस्ट आपको बीमारी की तशखीस करके बताएगा और वो उसको उसकी जब ब्लीडिंग होती है उसको मैनेज करके दिखाएगा। लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जब मसल में बहुत बड़ी ब्लीड हो जाए तो आपको सर्जिकल स्पेशलिस्ट को हेल्प लेनी पड़ती है। टांगों में जोड़ों में जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो हमने ऑर्थोपेडिक के साथ उसको मैनेज करना होता है। इसी तरीके से जब इन पेशेंट्स में दांतों का मसला होता है, एक ये कि दांतों में से ब्लड आता रहता है और एक होता है जब दांत निकालना है या डेंटल प्रोसीजर्स करने हैं तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको अगर तो सिंपल एक्सट्रैक्शन है और डिजीज भी इतनी सिवियर नहीं है तब तो आप ट्रांसमीन और लोकल हीमोस्टेटिक मेजर्स लेके उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिवियर हीमोफिलिक है तो उसको आपको फैक्टर कवर देके तो उस पेशेंट को आप ट्रीट करें। अगर क्योंकि हीमोफिलिया की एक इम्पॉर्टेंट चीज और बहुत केसेस हमारे पास आते हैं, वो ये करते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसको बताते नहीं है कि हमें हीमोफिलिया और वो दांत निकाल देते हैं या जो भी प्रोसीजर कर देते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। घर जाता है, कुछ घंटों के बाद उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कई दफ़ा तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होती। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, कई पेशेंट्स आते हैं कि जिन्होंने डेंटल प्रोसीजर कराया होता है और डॉक्टर को नहीं बताया होता कि उनको हीमोफिलिक है। क्योंकि हीमोफीलिया की एक खास बात है, उस वक्त प्रोसीजर के दौरान इतनी ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग कुछ घंटों के बाद शुरू होती है और यही वजह है कि बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो घर जाके ब्लीड करना शुरू होते हैं और बाद में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेंटिस्ट टू टेक डिटेल हिस्ट्री रिगार्डिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर और फैमिली हिस्ट्री को भी ज़रूर करें कि किसी को पेशेंट को समटाइम्स नहीं पता होता, लेकिन अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसके टेस्ट करा के उसको स्क्रीन जरूर कर ले। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि लोग इतनी दिलचस्पी से सुन रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नॉलेज को जहाँ तक हो सके फैलाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप काउंसलिंग भी करें और उनकी मदद भी करें ताकि वो और रेफ़र करें उनको ऐसी जगह पे जहाँ उनका डायग्नोसिस हो सके, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बच्चे हैं जो पॉपुलेशन है वो इस उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती और वो बेचारे बिकॉज ऑफ डायग्नोसिस के बगैर ही मोर्टेलिटी बहुत हाई हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस बच्चे में भी या बच्ची में खून बहने की टेंडेंसी ज़्यादा हो तो उसको फौरी उसका डॉक्टर के पास लेके जाएं, हेमाटोलॉजिस्ट के पास, और उसका डायग्नोसिस कराएं। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।